नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपको स्वागत है। आईटीवी गोल्ड पर आज के इस खास अंक में जो समाचार आप तक पहुंचने वाले हैं, बातचीत का आधार लेते हुए उनकी तरफ बढ़ने से पहले मेमोरियल डे वीकेंड के साथ साथ हम सब की ओर से उन सब शहीदों के नाम श्रद्धांजलि जिनके त्याग और बलिदान को लेकर अमेरिका जैसे महान राष्ट्र में हम अपने सपनों को साकार करने की तरफ स्वतंत्रता से आगे बढ़ पाते हैं। आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम में कोविड-19 के साथ जुड़े हुए कुछ संदर्भों की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो बातचीत करेंगे कॉलमिस्ट और लेखक डॉक्टर सुधीर बिष्ट से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। बातचीत करेंगे साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत से किस तरह कोविड के प्रभाव में भावनात्मक संतुलन बनाए रखा जाना आवश्यक है, और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के बारे में अनुभवी आनंद जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे जोधपुर से। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया, अ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दिल्ली से कॉलमिस्ट और लेखक डॉक्टर सुधीर बिष्ट से। सुधीर जी, आपका स्वागत करते हुए ये जो अभी हाल ही में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में परस्पर विरोधी विचार आ रहे हैं, उन के बीच में एक ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको लेके बहुत सारी बातें हुई और किसी ने हाई कोर्ट में एक प्ली भी लगा दी कि इसका जो काम है वो रोक देना चाहिए, और हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इस पूरे प्रकरण के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, it's a project of national importance, and every step which needs to be taken to carry out this project of such a vast nature has been dealt in great detail. For example, Urban Arts has given its approval. Ashok ji, interesting is in the month of January, Supreme Court had said that they find nothing wrong with the Central Vista development project or redevelopment project. It's a large project which envisages the creation of a new parliament which will seat Lok Sabha and Rajya Sabha. Also, all the government offices which are scattered all over Delhi, they will all be in one place, and it's a vista which will start from the Rajpath and it will extend up to India Gate. और ये एक इलेबोरेट प्लान है। इसके ऊपर अब दिल्ली में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इसमें जजमेंट दिया, कुछ लोगों ने इसमें ये आपत्ति उठाई थी कि अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना काल में ये एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है, और ये एक्टिविटी सिर्फ इसलिए हो रही है बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू कीप इट्स कमिटमेंट।
So it should be stopped. So High Court said this is a flimsy public interest litigation, and in fact, the High Court has imposed a fine of 1 lakh rupee on the people who actually pursued this case. And it said that the all the workers who are there working, they are working in an atmosphere which is sanitized, and there are all the facilities to ensure that the possibility of COVID contracting all the workers is very low. So Supreme Court, the High Court of Delhi, earlier Supreme Court had said that this project is valid, legal, constitutional. Now High Court has held that to stop the Central Vista project just because there is pandemic is wrong, and they have imposed a fine on the people who pursued this case. Vijay, So, allow me to ask you anything that is initiated by Modi government or Prime Minister Modi. So there are certain section of press as well as opposition members who have to oppose whether it is on a justified basis or not. That is the kind of mindset. Do you see that is a correct perception? see, this is so unfortunate because Narendra Modi is not going to be in parliament forever. I mean, we are all human beings and we have a finite lifetime. So the government wants to do something for as a legacy, and it's not a matter of trying to accumulate personal honor. See, the parliament, the number of seats in Lok Sabha have to increase. It is well known that instead of having just 535 members, we need to have at least 888 members. So there is no seating space for the new members whenever the parliament is enlarged. Second thing, one has to understand that the building of a new parliament was an act which was passed in 2012. It was a decision taken by Manmohan Singh government. I mean, it is so funny. It is so funny. And at that time, I had written an article in which I said, government does not need a new parliament building, but better parliamentarians. But because at that point in time, nobody had knew, because the UPA government was not able to convince the people why they need this new parliament building. It is only later, and a lot of credit should go to Mr. Om Birla, who kind of who spoke about it, and then Prime Minister and Hardeep Puri, the Minister of Urban Development. They were able to convince and tell the public that okay, we need to have a new parliament building because we need to have new members. For example, today if you want to have a joint session of parliament, it is virtually impossible to hold it if all the members turn up. So, see, India is a temple of democracy, and we need to extend the temple capacity if the number of people who are coming in are more. So it is a mindset which has to change. I agree. Second thing is, see, the what are the buildings of historic importance that we see in New Delhi? It was the Congress government which built which in whose period a Lotus Temple was built. Now today people come to see Lotus Temple. Okay, so when you build something, a building which you can be proud of, so people come, people draw inspiration from it. And should we only depend upon the structures which have been left behind by the British Raj to survive on? Third, one has to understand, sir, that buildings have a finite life, and building have a finite life. And if you see most of the buildings which houses government, for example, Shastri Bhavan, which houses Ministry of Petroleum and Ministry of and Education Ministry, Krishi Bhavan, which houses Ministry of Agriculture. Ashokji, you believe me, they are eyesores. These buildings are so haphazard, they are an eyesores. देखने से ही आपको वहां बुरा लगता है. Now it is time, and these buildings are very old. It is time that these buildings are demolished, and all the government organizations, they are housed in a complex which is a well lit close complex. So Also, this I think from that point of view, this Central Vista project is is a promising. very important And, project. yeah, and lastly, this was being referred to कि प्राइम मिनिस्टर अपना मकान बना रहे हैं, इतना महंगा मकान बना रहे हैं, etc. तो ओवरऑल इमोशनली डू यू सी एनी रिस्पॉन्स टू दिस प्रोजेक्ट या पीपल आर नॉट इंडिविजुअली साहब पेइंग अटेंशन? साहब नरेंद्र मोदी तो एक कमरे में रहता है. देखो मैं आपको बताऊं, ही इज अ सिंपल मैन. ही डज नॉट रिक्वायर more than 1.5 bedroom. He is a single person, and most of the time he is immersed in work. So are you saying that he has time to enjoy getting into a big house? And
perhaps by 20, and it not only houses the house of a prime minister, it houses the house of a vice president also. So you see three constitutional positions: the president, the vice president of India, and the prime minister of India. They will be in close vicinity. This will also minimize the expenditure on their securities. See, people just see, are you saying at this stage, at the age of 70, somebody is enamored with, getting into a new house? I mean, this is laughable. This is laughable to say the least. विजनो वेश्या वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम आप देख रहे हैं आईटीवी गोल्ड पर, और ये कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे हम आपकी सेवा में पेश करते हैं। साथ ही एक साप्ताहिक अंक विजनो वेश्या का आपकी सेवा में पेश किया जाता है रविवार को सुबह 11 बजे। आपके सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन है, बने रहे हमारे साथ, जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप तरह तरह के चुनौतीपूर्ण असर लेकर आ रहा है, जहां कई लोग अपने मित्रों, सगे संबंधियों के बिछुड़ने का दुख सहन कर रहे हैं। वहीं जिस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियां आर्थिक रूप से भी सामने आ रही हैं, ऐसे में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से अपनी सोच हमारे साथ बांटी साइको स्पिरिचुअल काउंसलर और माइंड ट्रेनर डॉक्टर नितिन सारस्वत ने। नितिन जी, आपका स्वागत करते करते मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जब ये कोविड-19 की दूसरी वेव शुरू हो गई है, उसको चलते एक भावनात्मक उथल-पुथल भी होती है, जो शारीरिक और मानसिक दबाव है, उनके साथ-साथ संतुलित बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, और किस तरह आप इस बारे में अपने संकेत देंगे हमारे दर्शकों को? जब भी कोई आपदा इतना लंबा खिंच जाए, जितना लंबा ये जो कोविड सिनेरियो है खिंच गया है, तो अनजाने में ही हम सबके भीतर छोटे छोटे परिवर्तन ये आपदा लेके आ जाती है। समस्या की बात यह है कि इनमें से 90% परिवर्तनों को हम में से ज्यादातर लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। अभी मैं एक पेपर पब्लिश कर रहा हूँ इस पर अपनी 5-6 डॉक्टर्स की टीम के साथ। उसमें हम मुख्यतः इसी चीज पर बात कर रहे हैं कि कोविड-19 ने हर किसी के मेंटल मेकअप पर और मेंटल वेलबींग पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला है, कुछ ना कुछ एडवर्स इम्पैक्ट डाला है। हाँ, पर जिन लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट, जिन्हें कोविड ने हिट किया है, उनमें से बहुत बड़ी एक संख्या ऐसी है जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट जो है, ये एडवर्स इम्पैक्ट, वो साफ आप देख सकते हैं। और ये नितिन जी, ऐसा होता है कि जब हमें आगे बढ़ना है तो आशा बहुत आवश्यक होती है, और जब ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम आए दिन ऐसे सुन रहे हों कि एक अमुक हमारे मित्र नहीं रहे, हमारे संबंधी नहीं रहे, और कुछ लोगों की नौकरियां भी चली गई हों, तो आशावादी बने रहना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका कोई विकल्प मेरी समझ में है नहीं, तो कैसे आशा को बचाए रखें? बहुत बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। अभी मेरे साथ तो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है कि मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेशन दे रहा था। मैं मोटिवेट कर रहा था लोगों को कि वो आशावादी बने, और अचानक 2 लोग बहुत बुरी तरीके से एक निराशा के साथ मेरे से कन्फ्रंट करने लगे मुझे कि आप हमें पॉजिटिव होने की बात भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि उनकी बिल्कुल नजदीक में कोई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी घट चुकी थी। पर यहीं पर मानव होने का सबूत हमें देना होता है। एक बहुत अच्छे कवि हैं हमारे जयपुर के ही, उनकी बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि मैं देवता नहीं जो कर सकूं पलायन, कि देवताओं को पलायन का अधिकार है, पर मानव हो तो आपको पलायन का अधिकार नहीं है। हम दुखी भी इसलिए हैं
क्योंकि हम जिंदगी में सुख चाहते हैं। हम निराश भी इसलिए हैं क्योंकि हम आशा के छिन जाने से परेशान हैं। तो हमें अंत में एक्चुअली हमारी नेगेटिविटी भी जो है वो इसीलिए है कि हम फाइनली पॉजिटिव होना ही चाहते हैं। और यही सबसे अच्छी बात है कि हम कितने भी नेगेटिव स्टेट में हो, हम कितने भी मानसिक रूप से परेशान हो, मूलतः हम सब बाउंस बैक करेंगे, या तो किसी की मदद के साथ या अपने आप, और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जैसे कि उपनिषद के वचन में अंग्रेजी में ऐसा कहा कि राइज आफ्टर ईच फॉल लाइक रबर बॉल, तो आप गिरे हैं तो उठना आवश्यक है। और कहते हैं आप गाय के गोबर या गोबर की तरह नीचे नहीं गिरो जो दस जाता है, बल्कि दूसरी तरह से। पर इसको व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से आप कुछ, अगर हम उन्हें कहें कि टेक्निक या कोई फॉर्मूला है जिसको आप हर दिन करेंगे तो आप लो गए तो भी लो रहेंगे नहीं, ऊपर आ जाएंगे, ऐसे क्या टिप्स आप दे सकते सबसे पहला जो एक चीज हमको इस समय सबसे ज्यादा काम करेगी वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में तो अब तक उन्होंने कभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ही नहीं किया हो। जब मैं अपनी वर्कशॉप में लोगों को बताता हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, तो उनमें से बहुत से लोग पूछते हैं कैसे प्रैक्टिस करें। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि यदि मेरे पास आंख है और मैं देख सकता हूँ, तो इस आंख का भी धन्यवाद देना सीखिए। अगर मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, और मेरे पास आज करने के लिए भोजन है, तो हर वो चीज जो मेरे पास है उसके लिए किसी एक शक्ति का धन्यवाद देना सीखिए। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए जो भी मेरे पास है उसके लिए। दूसरा, प्रेयर जरूर करें, किसी भी फॉर्म में प्रेयर करें। यदि कोई भी नेगेटिव खबर आपको मिलती है तो तुरंत उस व्यक्ति, उस घटना के लिए प्रे करें, और एक बार फिर ग्रैटिट्यूड में जाएं कि कम से कम आप इस अवस्था में हैं कि आप प्रे कर सकते हैं। अगर अब तक उस परम पिता ने इतना संभाल के रखा है तो वो आगे भी संभाल लेगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, प्रे करें। थर्ड, जो सबसे जरूरी है मुझे लगता है, अपने माइंड को पॉजिटिव स्टिमुलाई जरूर देते रहें। याद रखें, आप कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी अचानक आकर आपको घेर लेती है। आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के हाथ में खेलने वाला खिलौना नहीं है। आप चुनते हैं क्या चीज आपको इम्पैक्ट करने वाली है। अगर आप पॉजिटिव स्टिमुलाई चुनते हैं तो आप पॉजिटिव होने लगते हैं। अगर आप नेगेटिव स्टिमुलाई चुनते हैं तो आप नेगेटिव होने लगते हैं। रोज अपने आप को कुछ 4-5 अच्छी पॉजिटिव स्टिमुलाई दिया कीजिए, और कुछ नहीं तो यही पॉजिटिव स्टिमुलाई दीजिए कि आप अपने घर में बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, आज आपने एक अच्छी बुक पढ़ी, ये पॉजिटिव स्टिमुलाई दीजिए। अपने आप को कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर देते रहिए। कितने लोग कोविड से ठीक हो गए, ये पॉजिटिव स्टिमुलाई दीजिए। किस तरह से कोविड अब लगातार ग्राफ नीचे आ रहा है, ये पॉजिटिव स्टिमुलाई दीजिए। अगर आप बिजनेस या आपका जो वर्क है वो अभी तक बुरी तरह अफेक्टेड है, तो अपने आप को बताइए कि अब रिसेशन के बाद क्या होगा। रिसेशन तो आ गया, अब क्या होगा? अब बाउंस बैक का टाइम आएगा। तो अपने आप को पॉजिटिव स्टिमुलाई जरूर देते रहिए। चौथा, इमोशनल कन्वर्जेंस के रूल को समझिए। यदि हम इमोशनली ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो नेगेटिव 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 बोल रहे हैं, या कोई किसी व्यक्ति ने कुछ भी मुझको नेगेटिव बोला, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इमोशनल कन्वर्जेंस जो है वो हम सबके अंदर ऑटोमेटेड है। यदि मैं रो रहा हूं तो मुझे देखकर आपके अंदर एक नेगेटिव रोने का भाव पैदा होगा। यदि मैं हंस रहा हूं तो मैं आपको थोड़ा सा हंसा दूंगा। आप यदि किसी भी व्यक्ति से मिलके आते हैं जो दुखी है, परेशान है, तो याद रखें वो आईना था और आप उसमें अपना अक्स दिखाए, और उस आईने ने थोड़ा सा अक्स आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। तो सबसे पहले हमको ऐसा आईना बनना है जो पॉजिटिव इमोशनल कन्वर्जेंस क्रिएट कर सके, पॉजिटिव इमोशनल कंटेजन क्रिएट कर सके। जी हाँ, इमोशंस कंटेजियस होते हैं, संक्रामक होते हैं। यदि आप पॉजिटिव इमोशन लेके बैठे हैं
तो आपके आसपास 10 लोगों को अनजाने में ही आप थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी बांट देंगे। तो बहुत अगर हम सही बात। पॉजिटिव इमोशनल कंटेजन पे चले जाएं तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोगों का और अपना सबका भला कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह है, जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया के द्वारा कुछ अच्छे कार्यों को सिद्ध करने में भी मदद मिल सकती है। आनंद जी, आप ये बताइए कि सोशल मीडिया का आप बहुत उपयोग जुड़ने और जोड़ने की दृष्टि से जो करते हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपको कब लगा कि ये माध्यम बहुत सशक्त है, इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है? सोशल मीडिया माध्यम अगर देखा जाए तो सर आपसे ही मिली। आपको मैं आपको मैं देखता रहता हूँ, और विशेष रूप से अभी वर्तमान की बात करें, जो एवरीडे गीता की बात मैं कर रहा हूँ, मैं रोज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं रोज सुनता हूँ, परंतु जब भी सुनता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि उसको आत्मसात करें। तो ऐसे बहुत सी लोग थे जोधपुर में, जैसे निर्मल जी गहलोत हैं, आप न्यूयॉर्क से आप खुद है, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं प्रेरित हूँ। नाम लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा मैं अच्छा, नाम। तो आप ये बताइए कि जो आपने एक फेसबुक पेज शुरू किया जिसके माध्यम से समाज में जो किसी का देहावसान हो जाता है, वो सूचना भी आप देते हैं, उसकी क्या आवश्यकता आपको लगती है और उसका क्या महत्व है? हाँ बिल्कुल, जी। श्रद्धा सुमन नाम से एक है, और उसमें करीब 18 के लोग, मतलब 18,000 लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, जो भारत के अलावा 44 देशों से जुड़े हुए हैं, उनको एक तो सूचना जो सही समय पर मिल जाती है। एक एड देने के लिए, अखबार में एक विज्ञापन देने के लिए कम से कम 5 से 7,000 8,000 रुपए व्यक्ति के बचत हो जाती है। दूसरा, बहुत कम समय में समाज के लोग जो चाहे वो कहीं पर भी बैठे हैं, उनको इमीडिएटली वो सूचना मिल जाती है, और ताकि वो उस परिस्थिति में समाज के लोग जो उनके घर तक नहीं पहुंच जाए, दुख के समय वो उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसा मैं सोच कर इस ग्रुप का जो है सृजन किया था। अच्छा आनंद जी, कई लोग जो किसी मुसीबत में होते हैं, आपने उनकी मदद करने के लिए कई बार ऐसे प्रकल्प उठाए हैं जिसमें लोगों ने पैसे से या जिस तरह भी मदद की हो, उसमें से कोई एक बात आपको याद आती हो जिससे आपको लगा हो कि लोगों के मन में अच्छा करने की भावना है, कोई उनको उनके पास जाकर उनको थोड़ा सा स्पर्श करना चाहिए कि आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, उस दृष्टि से जो आपने किया, कभी एक बच्ची के लिए ऑपरेशन की मदद या एक आधी बात बताइए? जी। बिल्कुल, उस छोटी बच्ची की बात करूंगा, उसका नाम था विशाखा व्यास। 2 साल पुरानी की बात है, किडनी ट्रांसप्लांट का मामला था, और 17 लाख रुपए उसको इकट्ठे करने थे, और उस समय उनके पास में इतने रुपए नहीं थे। एक छोटी सी पोस्ट फेसबुक के माध्यम से जो मैंने सबसे पहले लाइव की थी, और उसको हजारों लोगों ने देखा, जिसमें एक नाम, सबसे बड़ा नाम निर्मल गहलोत। उसके बाद में ऐसे हजारों लोग आ गए जो छोटी छोटी राशि, चाहे उसमें 100 रुपए भी थे, 500 भी थे, 1000 भी थे, और 1 लाख रुपए थे। विद इन 17 डेज, 17 दिन में करीब हमारे पास में 18 लाख रुपए आ गए, और उस बच्ची का इलाज हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, और आज वो बच्ची मुझे आनंद मामा के नाम से जानती तो आनंद जी, ये उत्साह तो बढ़ता ही है, आप उसमें जो क्रिएटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि एक फ़ोन है, उसको लेकर आप कभी लाइव भी कर रहे हैं, कई लोगों के इंटरव्यू भी ले रहे हैं, है। तो कुछ-कुछ नया-नया आप सीखते भी रहते हैं। आपको कैसा लगता है ये पूरा जो प्रोसेस है, क्रिएट करने का और फीडबैक आता है वो सब? एक हमारे शायद आप जोधपुर से हैं तो जहूर खां मेहर साहब, आपने नाम सुना होगा, जी, बिल्कुल। इतिहासकार रहे। अच्छी तरह, तो अच्छी बिल्कुल उनके उनके पास में बैठना होता है, उनसे बातें करनी होती है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि अपने से कम उम्र वाले बच्चों के साथ, युवा के साथ बैठो, नई ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। तो बस मैं अपने जो बेटे की उम्र के हैं, जो युवा है, उनके पास में बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, 4 बार पूछता हूँ, 2 बार वो बताते हैं, और उनसे सीखते सीखते आज इस कदर पे है कि ये टेलीफोन मेरा लाइव वाला भी बना हुआ है। तो और जब भी मैं बात करता हूँ तो अपनी मातृभूमि को जरूर नमस्कार करता हूँ, तो मेरा संबोधन भी जो रहता है वो नमस्कार जोधपुर से शुरू होता है। और इस अभी हाल ही में कोविड काल की बात करें तो आभासी पटल पर एक मुलाकात, इसके तहत हमने बहुत से बुजुर्गों से हमने बात की है, बहुत से ऐसे लोगों से बात की है जो कभी इस इंटरनेट से कभी जुड़े ही नहीं,
जब उनकी बातें वो जो है मारवाड़ी में हो चाहे कुछ भी हो, उनके अनुभव जब साझा किए जाते हैं फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, और जब वो उनके पोते उनके नातिन बाहर बैठे देखते हैं आज नानी बोली आज दादा बोले, तो सबको अच्छा लगता है। और एक जो जनरेशन गैप है वो धीरे धीरे कम होती मुझे नजर आती है इस सोशल मीडिया के कारण। मतलब वो लोग भली बात कुछ भी कहे, हमें सकारात्मकता की और ही जो है बढ़ना है और पॉजिटिव ही सोच अपने को रखनी है। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें, आप हमारे मित्र बने, फेसबुक पेज पर ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लिखने का ये क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। साथ देने के लिए आभार। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।